एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉन depolarizing blockers. So let's start. So these are the drugs which reduce skeletal muscle tone and spasm without causing loss of consciousness. Means ये वो ड्रग्स हैं जो कि स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनको क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी. मतलब these will lead to what? Muscle relaxation. Okay, but this very important point to note is that these do not cause loss of consciousness. मतलब ये ड्रग्स अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो देयर विल not be what? Unconsciousness. So these drugs do not lead to unconsciousness. इसीलिए आपको इन ड्रग्स को एनेस्थीसिया या फिर एनेसिडेशन उसके साथ ही आपको क्या करना है, इन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है. ठीक है. These drugs do not lead to unconsciousness or analgesic effect. Okay. So these are used in anesthesia to relax lower limbs or abdominal wall muscles so that operative manipulation become easy. जो भी आपको कोई भी सर्जरी करनी है, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरी करनी है, आपको एब्डोमिनल सर्जरी करनी है, ठीक है, तो उस केस में हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं सो दैट अपना जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है दैट कैन बिकम ईजी. ओके. So these can also be used to facilitate endotracheal intubation. तो suppose अगर आपको endotracheal tube insert करनी है ट्रेकिया में to secure open airway, ठीक है, in patient, तो these drugs will help in relaxing what? Laryngeal musculature, ठीक है, so that intubation become easy. ठीक है. Now coming to the classification. सो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ड्रग्स. ठीक है. मेजर टाइप्स दो हैं. वैसे हमने जो क्लासिफिकेशन डिवाइड करते हैं वो हम करते हैं सेंट्रली एक्टिंग, पेरिफेरली एक्टिंग एंड मिसलेनियस. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट? सेंट्रली एक्टिंग. तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स क्या होती है? दीज हैव सेलेक्टिव एक्शन इन सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस. ठीक है. बट दीज डू नॉट लीड टू वॉट? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है. ठीक है. पेशेंट इज कॉन्शियस. अगर आप ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं स्टिल पेशेंट इज कॉन्शियस. ठीक है. बट इनका एक्शन कहाँ है? एट द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस. तो इनको हमने डिवाइड किया है. नंबर फर्स्ट is what? Mifencin congeners. ठीक है. Which we have carisoprodol, chlorzoxazone, chlormazazone and methocarbamol. ठीक है. Second we have benzodiazepines. You are very well aware about this. Which we have what? Diazepam. Then we have GABA, mimetic, which is we having baclofen or thiocolchicoside. Then we have central alpha 2 agonist, we have tizanidine in that, and we have miscellaneous which is tolperisone hydrochloride. Okay, so this is the centrally acting drugs. These are acting what? Centrally. ठीक है. Next we have what? Peripherally acting drugs. So these drugs act at what? Neuromuscular junction. Okay, so that's why these are divided into what? Neuromuscular blocking agents and directly acting agents. ठीक है. तो neuromuscular blocking agents or you can say NMJ blockers, these are again divided into what? Non-depolarizing and depolarizing. So why this is the name? Because these drugs do not cause depolarization of muscle fiber. ठीक है. And depolarizing is why? Because these are causing consistent depolarization. ठीक है. So that's why these are the names which we will study in detail later. ठीक है. So non-depolarizing drugs are also called as competitive blockers. Okay, so we have again subdivision as long acting, intermediate acting or short acting. ठीक है. Long acting, why these are divided as long, intermediate and short according to duration of action? Why? Because जो long acting है these are excreted through kidney. ठीक है. And they have duration of action around like 35 to 100 minutes. Okay, so these are called as long acting. In this we have D-tubercurin, or you can write short form as DTC. ठीक है. Then we have pancuronium, doxacurium, pipecuronium. ठीक है. Then I have written SS against their name because why? Because these are steroidal derivative. ठीक है. These are steroidal derivatives. And then we have intermediate acting. Why intermediate? Because these are eliminated by liver. Okay, then we have what? Cis atracurium, atracurium, rocuronium and vicuronium. Then you can remember it as mnemonic CAR V. Okay, then we have rocuronium and vicuronium as steroidal derivatives. Okay, then we have short acting. Short acting में we have mivacurium and rapacurium. And again rapacurium is steroidal derivative, but rapacurium को हमने क्या कर लिया? Recall कर लिया because of so many adverse effects. ठीक है.
This is no longer in use. Then we have depolarizing. Depolarizing blockers में we have succinylcholine, only used in clinical practice. Okay, only drug used in clinical practice in depolarizing blockers. Now ये तो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, एनएमजे जंक्शन पे एक्ट करेंगी. सेकेंड कैटेगरी हमने जो पेरिफेरल एक्टिंग में वो कौन सी है, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. मतलब ये डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट कर रही है, मसल फाइबर पे. ठीक है, डायरेक्टली वॉलंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रही है, ये स्टॉप कर रही हैं. तो दैट्स वाई वी नेम इज डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. इसमें हमारे पास क्या है, डेंट्रोलिन, सोडियम एंड क्यूनिन. ओके, नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस. देखो क्यूनिन को अगर आपको डायरेक्टली एक्टिंग में रखना है, अदरवाइज यू कैन प्लेस इट इन मिसलेनियस ऑल्सो. ठीक है, तो वी हैव क्यूनिन, बोटुलिनम टॉक्सिन ए एंड बी, गाबापेंटिन, प्रोगाबाइड, रिल्यूजोल एंड idroselamide. ठीक है, so this we are done with the classification. This is the classification of this skeletal muscle relaxant. Now starting with the peripheral acting muscle relaxant. Firstly we will start with the peripheral acting muscle relaxant. In this we will see the neuromuscular blocking agents, and in that too we will see about the non depolarizing agents. Okay, non depolarizing drugs. Okay, so these drugs act peripherally at NMJ. NMJ पे act करेंगे, that's why these are called as NMJ blockers. So non-depolarizing blockers are also called as competitive blockers. Why? We will see ahead. So first neuromuscular blocking drug थी वो कौन सी थी, क्यूरेर थी. ठीक है, so this was used by what, native hunters of America, और यू कैन से अमेजोन फॉरेस्ट में हंटर्स वर यूजिंग दिस ड्रग. क्यों, ताकि दे यूज इट टू पैरालाइज एन एनिमल वाइल हंटिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, 1940s में नई ड्रग डिस्कवर हुई named as D-tubocurarine or DTC. ठीक है, this is the prototype drug, but this is also no longer used in practice because many other synthetic drugs have arrived. ठीक है, so other drugs are used more. Okay, कौन कौन सी है, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, वीक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम, मिवाक्यूरियम, रैपाक्यूरोनियम. देन वी हैव मेटोक्यूरिन, डॉक्साक्यूरियम, पैनक्यूरोनियम एंड पाइपेक्यूरोनियम. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स. अब अगर हम बात करें इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट point you have to understand. It can come as long question, pre PG MCQ. This is a favorite topic. Okay, so mechanism of action पढ़ने से पहले you should know this is the bulky quaternary compounds. Okay, with having 2 positively charged nitrogen atoms. ठीक है, so अब अगर mechanism of action हम start करने से पहले I want to tell you what is a normal neuromuscular transmission. Okay, कि न्यूरोमस्कुलर नॉर्मल ट्रांसमिशन कैसे होता है और ये ड्रग्स फिर कहाँ पर अटैक करती है. ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में कोई भी एक नर्व इम्पल्स आता है. ठीक है, नर्व इम्पल्स आने से क्या होगा, एसिटिलकोलिन क्या होगा, रिलीज होगा एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एसिटिलकोलिन इज डिनोटेड बाय व्हाट, ऑरेंज ब्लॉक. ठीक है, तो एसिटिलकोलिन रिलीज हो गया एट एनएमजे. अब क्या होगा, एनएमजे पे क्या है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, कौन सा, एनएम रिसेप्टर. ओके, तो ये जो एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ है, दिस विल बाइंड टू द रिसेप्टर एट मोटर एंड प्लेट. तो जैसे ही एसिटिलकोलिन बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, वैसे ही क्या होगा, सोडियम चैनल विल गेट ओपन. ठीक है, सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम की एंट्री होगी. दिस विल लीड टू व्हाट, डीपोलराइजेशन, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, एंड प्लेट पोटेंशियल. दिस विल जनरेट एंड प्लेट पोटेंशियल. ओके, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो इस तरह से क्या होता है, नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. हम क्या पढ़ रहे हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. हमें पढ़ना है कि ड्रग कैसे इस कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. तो इन ड्रग्स की एफिनिटी होती है फॉर व्हाट, NM receptors at motor and plate. ठीक है, बट दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी ओवर देम. एफिनिटी तो है इस रिसेप्टर के लिए, बट दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, मतलब ना तो ये एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, ना डीएक्टिवेट कर सकते हैं. इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है. सो दीज ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट NM रिसेप्टर. अगर इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या है, ये ड्रग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एट NM रिसेप्टर्स. कैसे, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करेंगी, सपोज दिस इज द डायग्राम डिपिक्टिंग, ये है DTC ड्रग. ठीक है, D-tubocurarine. ठीक है, ये आपने एडमिनिस्टर किया तो ये ड्रग क्या करेगी, आके बाइंड करेगी रिसेप्टर पे. तो इस ड्रग ने बाइंड तो कर लिया रिसेप्टर पे. ठीक है, अब इसको एक्टिवेट नहीं करेगी रिसेप्टर को. ठीक है, DTC ने आके रिसेप्टर पे बाइंड कर लिया, बट इसको इसने एक्टिवेट नहीं किया. क्यों, क्योंकि एफिनिटी तो है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है. ठीक है,
सो क्या होगा, अब एस्टिल कोलिन को इसके यहाँ पे आके बाइंड करना था, बट नाउ एस्टिल कोलिन इज नॉट एबल टू बाइंड टू दिस रिसेप्टर. क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है, कॉम्पिटिशन है कि कौन इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा. तो डीटीसी ने क्या कर लिया, ज्यादा एफिनिटी तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया. नाउ एस्टिल कोलिन अब इसके इज नॉट एबल टू बाइंड विद दिस रिसेप्टर. ठीक है, तो क्या होगा, this will lead to what, there will not be any necessary conformational change in the NM receptor which is needed for what, sodium channel opening. ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हो क्या रहा था, एस्टिल कोलिन जब बाइंड कर रहा था तो कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा था और सोडियम चैनल ओपन हो रहा था. अब क्या होगा, डीटीसी ने बाइंड कर लिया रिसेप्टर को, तो देयर इज नो कन्फर्मेशनल चेंज. तो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं हुआ यहाँ पे रिसेप्टर में, तो सोडियम चैनल भी क्या होगा, अब ओपन नहीं होगा, मतलब सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा. अब सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, जैसे कोई नर्व इम्पल्स आएगा तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, और दिस विल नॉट लीड टू व्हाट, जनरेशन ऑफ व्हाट, देयर विल बी नो डीपोलराइजेशन और एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एंड दिस विल नॉट बी एबल टू एलिसिट कॉन्ट्रैक्शंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि एंड प्लेट डीपोलराइजेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आ पाया. ठीक है, सो दिस इज हाउ व्हाट स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन अकर्स. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुई तो क्या होगा, स्केलेटल, देयर विल बी स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, प्रोग्रेसिव फ्लैसिड पैरालिसिस. ये 3 वर्ड हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, ये आप रट लो कि इट विल लीड टू व्हाट, प्रोग्रेसिव फ्लैसिड पैरालिसिस. ठीक है, और व्हाई इट इज रिवर्सिबल, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसको आप रिवर्सल को, ये जो ब्लॉकेड है इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नियोस्टिगमिन, विच इज व्हाट, एंटीकोलिनेस्ट्रेस. ठीक है, एंटीकोलिनेस्ट्रेस क्या करेगा, जो एस्टिल कोलिन था, जो कि एस्टिल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था. ठीक है, अब उसको क्या करेगा, एंटीकोलिनेस्ट्रेस जो नियोस्टिगमिन है वो उस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, तो ज्यादा अमाउंट में एस्टिल कोलिन हमारे पास अवेलेबल रहेगा, एंड देन दिस कैन कॉम्पीट विद दिस डीटीसी. ठीक है, टू ऑक्यूपाई द रिसेप्टर. तो वो हम आगे देखेंगे कैसे करता है. तो अब हम पढ़ते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, क्वाटरनरी कंपाउंड, पोलर है ये, आयोनाइज्ड एट फिजियोलॉजिकल पीएच है, इट इज नॉट एब्जॉर्ब ओरली. if you give it orally so it is not absorbed, so you have to give it what, IV. ठीक है, so drugs excreted by kidney, I have already make you understand, drug excreted by kidney, these have longer duration of action, eliminated by liver, these have intermediate short duration of action, and drugs inactivated by plasma cholinesterase have shorter duration of action. तो जो भी drugs plasma cholinesterase के साथ के वजह से क्या हो रही है, इनएक्टिवेट हो रही है. ठीक है, उनका एक्शन क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. ठीक है, सो वी हैव व्हाट, अब सपोज वी हैव वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्री पीजी एमसीक्यू एंड फॉर योर शॉर्ट नोट ऑल्सो, वी हैव हॉफमैन एलिमिनेशन. ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है कि देयर इज अ एस्टर कंटेनिंग ब्रिज जॉइनिंग व्हाट, आइसोक्विनोलिन मोइटीज. ठीक है, दे आर 2 आइसोक्विनोलिन मोइटीज जिसको एस्टर कंटेनिंग ब्रिज से जॉइंट है. ठीक है, तो अगर इस ब्रिज का रप्चर हो जाए, ठीक है, सो दिस इज लीड टू व्हाट, इनएक्टिवेशन बाय हॉफमैन एलिमिनेशन. इसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन स्पॉन्टेनियसली इन प्लाज्मा बाय हॉफमैन एलिमिनेशन. ठीक है, और मेजरली कौन सी ड्रग शो करती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग शो करती है. ठीक है, कौन कौन सी, एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम. ठीक है, अब सपोज किसी पेशेंट के किडनी रीनल इम्पेयरमेंट है या लिवर इम्पेयरमेंट है. ठीक है, कि रीनल फेलियर है किसी पेशेंट के, या लिवर हेपेटिक फेलियर कंडीशन है किसी पेशेंट के, तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई सर्जरी करनी है तो यू कैन गिव व्हाट, एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम. वाई, बिकॉज दीज आर इनएक्टिवेटेड बाय व्हाट, हॉफमैन एलिमिनेशन. अब एट्राक्यूरियम का अगर हॉफमैन एलिमिनेशन हो रहा है तो जो मेटाबोलाइट है वो कौन सा है, लुडेनोसाइन. ठीक है, सो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, और क्रॉस करके ये क्या करता है, सीजर्स कॉज करता है. ठीक है, बिकॉज इट इज अ CNS स्टिमुलेंट. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड सिस एट्राक्यूरियम इज मोर सेफर देन एट्राक्यूरियम. क्यों? क्योंकि जो मेटाबोलाइट है इट रिलीजेस लेस लुडेनोसाइन. ठीक है, एंड लेस हिस्टामीन ऑल्सो. ठीक है, दैट्स वाई इट इज मोर सेफर. ओके,
सो कमिंग टू नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक एक्शन। फार्माकोडायनेमिक एक्शन में क्या है, दीज ड्रग्स कॉजेज स्केलेटल मसल पैरालिसिस। कैसे, आप इन ड्रग्स को आईवी इंजेक्ट करते हो, मोटर वीकनेस लीड्स टू व्हाट, फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मसल्स ऑफ जो स्मॉल रैपिडली मूविंग मसल्स हैं सबसे पहले वो अफेक्ट होंगी। कौन सी, जैसे आईज, जॉ, टोज और लैरिंग्स की, सबसे पहले वो अफेक्ट होंगी। नेक्स्ट लार्जर मसल कौन सी, लिम्स की और ट्रंक्स की, उसके बाद इंटरकोस्टल मसल एंड उसके बाद सबसे लास्ट में डायफ्राम मसल्स विल बी अफेक्टेड। अब रिकवरी कैसे होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी। ठीक है, रिकवरी के बाद देयर इज नो मसल सोर, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ मसल सोर। क्यों, क्योंकि इट इज प्रोग्रेसिव फ्लैसिड पैरालिसिस। यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। ओके, दिस इज, आप इस टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज प्रोग्रेसिव फ्लैसिड पैरालिसिस एंड नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, सेकंड क्या है, हिस्टामिन रिलीज। ठीक है, थर्ड क्या है, दीज ड्रग्स ऑल्सो रिलीज हिस्टामिन, मेजरली कौन, डीटीसी। देन थर्ड है गैंग्लियोनिक एनएन एंड कार्डिक मस्करेनिक M2 रिसेप्टर ब्लॉकेट। ठीक है, गैंग्लियोनिक एनएन ब्लॉकेट कौन करता है, डीटीसी, तो इट विल लीड टू व्हाट, हाइपोटेंशन। एंड कार्डिक मस्करेनिक M2 रिसेप्टर ब्लॉकेट है तो इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, पैनक्यूरोनियम, जिसका क्या होता है, वेगोलिटिक एक्शन होता है एंड दिस कैन लीड टू व्हाट, टैकीकार्डिया। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज ड्रग आल्सो हैव कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट में डीटीसी कैन कॉज व्हाट, ब्रोंकोस्पाज्म। एंड जीआईटी में क्या है, दीज डिक्रीज टोन एंड मोटिलिटी ऑफ जीआईटी एंड आफ्टर रिकवरी और रिवर्सल दीज कैन ऑल्सो लीड टू व्हाट, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, नाउ रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेट कैसे होता है। ठीक है, तो वी हैव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन। ठीक है, दीज ड्रग एंटागोनाइज और रिवर्स द नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटिलकोलिन। मैंने बताया था ये ड्रग क्या करती हैं, एसिटिलकोलिन की अवेलेबिलिटी को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। अगर आपने नियोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर कर दिया तो जो एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको ड्रग इनहिबिट कर देंगे नियोस्टिग्मिन, तो जिससे क्या होगा, एसिटिलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो एसिटिलकोलिन ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कैसे होगा, बाय इनहिबिटिंग ट्रू एसिटिलकोलिनेस्टरेज, ध्यान रखना ट्रू है नॉट सूडो। ठीक है, प्रेजेंट इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट और प्लस डायरेक्ट निकोटिनिक एक्शन एट मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट पे डायरेक्ट निकोटिनिक एक्शन भी होता है इन ड्रग्स का, तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं दिस पैरालिसिस। ठीक है, बट अलग बात वो है कि आपने हाई कंसंट्रेशन में अगर दे दिया, ठीक है, तो दीज ड्रग्स कैन कॉज, दीज ड्रग्स ये क्या कर सकती हैं, डायरेक्टली ही सोडियम चैनल को क्या कर सकती है, ओपन कर सकती है विदाउट एक्टिंग ऑन दीज रिसेप्टर्स। अगर आपने नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स को हाई कंसंट्रेशन में दे दिया तो क्या होगा, डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट कर जाएंगी, सोडियम चैनल पे। ठीक है, ओपन कर देंगे। देन वी हैव न्यू ड्रग्स, न्यूअर ड्रग है हमारे पास फॉर द रिवर्सल ऑफ blockade which is Sugama Dex. ठीक है, this is newly introduced drug to reverse neuromuscular blockade produced by steroidal neuromuscular blockers. ठीक है, जैसे कौन कौन से थे स्टेरॉयडल, जैसे वी हैव रोक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम, ठीक है, पैनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम, पाइपेक्यूरोनियम, तो इनको रिवर्स करने के लिए इनका ब्लॉकेट वी हैव सुगामा डेक्स। ये क्या करता है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेता है विद द ड्रग्स रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, जिस वजह से फिर जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे चिलेशन फॉर्म हो जाता है वैसे चिलेशन फॉर्म करके वो कॉम्प्लेक्स यूरिन से रिमूव हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, कॉन्स्टिपेशन एंड टेकिकार्डिया। यू हैव ऑलरेडी सीन इन दैट हिस्टामिन एंड वेगोलिटिक एक्शंस की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ड्रग्स का सिनर्जिस्ट एंड एंटागोनिस्टिक एक्शन। तो अगर हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया से क्या होता है, इट हाइपोथर्मिया की वजह से डीपोलराइजिंग एक्शन एसिटिलकोलिन का ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन एंटागोनाइज करती है एक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, देन वी हैव इनहेलेशनल जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इनहेलेशन जनरल एनेस्थीसिया सेंसिटिविटी ऑफ पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन है विद न्यूरो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्री पीजी एमसीक्यू एंड फॉर वाइवा पर्पस, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, यू कैन वॉच इन माय प्रीवियस वीडियोस ऑन माय चैनल। ठीक है, कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज एंटीबायोटिक्स कॉज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। क्यों, कैसे करती हैं, बाय डिक्रीजिंग एसिटिलकोलिन फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक टर्मिनल्स बाय इनहिबिटिंग पी टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, अदर एंटीबायोटिक कौन सी है, पॉलीमिक्सिन बी, क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो इनका क्या होता है, सिनर्जिस्टिक एक्शन है विद दीज नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। यूजेस क्या है इन ड्रग्स के, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी,
फैसिलिटेशन ऑफ एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन एंड एडजंक्ट इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें क्या होता है सिजर्स होंगे तो टू प्रिवेंट मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, ठीक है। और इन सब के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। सो दिस कंप्लीट्स योर नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. इन अनदर वीडियो I will discuss what depolarizing, then I will discuss centrally acting and rest of the drugs. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.